Hello students, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel. So in this tutorial we will learn that what is Tkinter module and where it is used. So Tkinter, sometime it is known as TK interface. So this Tkinter module is used for making the graphical user interface application. GUI based application जब भी आपने create करनी है, so this is the best module to start with. So apart from this Tkinter module, what are the other options? So apart from this module, we have WX Python, we have JPython, which is nowadays known as Jython. Then we have also PyQt. So what is special about all these modules? Tkinter, WX Python, JPython, Jython, PyQt. So in some में special क्या है? The speciality of this module is that it help you to create a cross-platform based application. Now, what is a cross-platform based application? First of all, you must know about that. So, cross-platform based application is application which can be run over Windows, which can be run over Linux, or which can be run over Linux platform. Right? So that is why it is known as cross-platform based application. वो किसी भी platform पे run हो जाएगी. It is based on TK toolkit. जो ये TK वर्ड था मैंने बोला TK interface, this come from here because it is based on a TK toolkit. This module is not available by default, right? So that means we need to install. तो जैसे आपने देखा था numpy मॉड्यूल के केस में numpy आपका Tkinter की तरह बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो numpy हमने कैसे किया था pip इंस्टॉल के साथ. So in the same way we will use pip command to install the Tkinter module. And if you do not know that how to install this module, for that you need to watch my video on the numpy, the first video, introductory video on the numpy module. So there you will be able to know that कि किस तरह से हम pip command का use करते हैं. But for your reference I'm going to write all the step in the description. तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है you can get it from the description. Then Tkinter provides various control, क्योंकि जब भी आपको GUI based application create करनी है you need to add some control on the graphical user interface. वो आपको कुछ widgets use करने पड़ेंगे just like the label, text box, radio button, checkbox. So these widgets or these control will help you to make an interesting GUI based application. All controls are also known as widgets. तो किस तरह की एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन जो मैंने क्रिएट की है Tkinter का यूज करके. सो इट लुक्स लाइक यू कैन सी कि ऐसी एप्लीकेशन आप लॉगिन के लिए, जो लॉगिन विंडोज के लिए आप पेज क्रिएट करते हैं, वहां के आपके पास इस तरह की एप्लीकेशन बन के आती है. तो मैंने यहाँ पे कौन कौन से कंट्रोल यूज किए हैं. सो लेट मी टेल यू फर्स्ट. दिस इज अ लेबल, जो यहाँ पे मैंने ये यूज किया है. इट्स अ लेबल. ठीक है, ये मेरा एक लेबल है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द लेबल मैंने और क्या क्या यूज किया हुआ है यहाँ पे. ये मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं. तो टेक्स्ट बॉक्सेस जहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. अगेन वन मोर लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, एंड दिस इज अ बटन. राइट. सो you can add the control of widgets as per your requirement, right? So now in this tutorial, if you want to make such kind of interesting GUI based application, so in that case you need to watch all the videos, upcoming video. So for that I request you to please subscribe my channel. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है then please subscribe my channel and please do not forget to press on the bell icon, right? Then only you will be able to get the notification of the upcoming video on the Tkinter, right? So student, if you want to learn the Tkinter then please subscribe our channel. Now here I'm going to open the Python. So we will learn that how to import this module and how to make a first application, right, with the help of a Tkinter. So for that I'm going to import the module, right? So for that I will write from Tkinter import star. तो आपको मालूम है कि जब भी आपने किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, देयर आर टू डिफरेंट वे. द फर्स्ट वे जो हमने यूज किया हुआ, कई बार यूज किया हुआ है, import Tkinter as TK. You can write it in this way or you can write in this way from Tkinter import star. दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, राइट? तो इस मेथड का बेनिफिट क्या हुआ है? इसका बेनिफिट ये है कि जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी मेंबर वेरिएबल हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे मेरे अब इस फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं. आई कैन यूज देम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी the important class of this module. The name of the class is TK, right?
So for that, I'm going to create the object of this class. My obj is equals to tk. मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने एक क्लास ली जो कि बाय डिफॉल्ट क्लास है इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, राइट. नाउ आई एम गोइंग टू यूज सम फंक्शन ऑफ दिस tk क्लास, right, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, obj. So this object will help me to access the function of class tk. तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने देखा था that how to create the object. So this is how you can create the object, right. So with the help of object I'm going to use the functions, right. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ my obj dot title. This is the first function. So this function will help me to create the dialog box. ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम भी दे देता हूँ. लेट्स से मैंने उसका नाम दे दिया कोड गुरु, राइट. तो जो भी मेरा ये बनकर आएगा, या तो मैं इसे प्रिंट कर दूं, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रिंट, और मैं इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ सीधा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर दूं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसे एक वेरिएबल को असाइन कर दूं. तो दोनों तरह से हो सकता है. पहले मैं प्रिंट करके देखता हूँ. लेट अस सी कि इस तरह से प्रिंट होकर आता है या नहीं. सो देयर कैन सी. तो यहाँ पे मेरे पास जो ये डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में अपीयर हुआ, सो इट्स अ डायलॉग बॉक्स, यू कैन से इट्स अ विंडो. और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दिया था, जो टाइटल दिया था, दिस इज द टाइटल ऑफ माय फर्स्ट विंडो कोड गुरु. एंड देयर यू कैन सी दीज आर द डिफॉल्ट बटन व्हिच आर देयर. तो यहाँ पे डिफॉल्ट बटन क्या है, मिनिमाइज करने के लिए, यू कैन मिनिमाइज इट, ठीक है. तो ये मेरे पास मिनिमाइज होकर आया था, मैंने मैक्सिमाइज किया, मैक्सिमाइज कर सकता हूँ. आई कैन क्लोज इट, मैं क्लोज करना चाहूँ यहाँ पे इसे क्लोज भी कर सकता हूँ, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट विंडो, राइट. और अगर मैं चाहता हूँ इसे किसी वेरिएबल को असाइन करना, आई कैन असाइन इट, राइट. अब यहाँ पे क्या आपने देखा कि जब मैंने इसे प्रिंट किया, तो प्रिंट होने के बाद उसका जो साइज है वो डिफॉल्ट आ रहा था. ये मेरे पास टाइटल भी प्रिंट नहीं हो रहा, टाइटल भी नहीं दिख रहा. तो मैं इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है. तो लेट अस सी दैट हाउ टू इंक्रीज द साइज. जो इसका डिफॉल्ट साइज आ रहा है उसे मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई obj डॉट टाइटल, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, ठीक है. एंड विद दिस आई विल राइट obj डॉट geometry, एंड हेयर आई विल पास सम पैरामीटर. तो ये पैरामीटर मेरे पास जो है वो क्या है, उसकी जो विड्थ और हाइट के लिए. तो पहला पैरामीटर है उसकी विड्थ के लिए और दूसरा पैरामीटर है उसकी हाइट के लिए, 400x 400, ठीक है. सो नाउ लेट अस assign it to a variable my dlg is equals to, ठीक है, इसे मैंने असाइन कर दिया. और मैं अपने my dlg अपने इसको प्रिंट कर लेता हूँ. my dlg को मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ. सो लेट अस रन द कोड. अभी जो उसका डिफॉल्ट साइज आ रहा था अब उससे बड़ा आया, ठीक है. पहले आपने देखा उसका साइज क्या था. सो इन दिस वे यू कैन इंक्रीज द साइज, राइट. सम अदर पैरामीटर वी कैन यूज. इसके अलावा हम और पैरामीटर क्या हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं. तो अदर पैरामीटर्स जो हैं वो क्या है, मैं कहता हूं कि मेरे पास उसकी एक्स और वाई एक्सेस की लोकेशन वो भी मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं. मैंने दे दिया लेट्स से 200 प्लस 100, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट. अब ये क्या करेगा, उसकी जो डिफॉल्ट एक्स और वाई के एक्सिस आ रहे थे, जो डिफॉल्ट वो कुछ यहाँ पे इस जगह पे प्रिंट हो रही थी, अब वो उसे चेंज करके प्रिंट करेगा, ठीक है. सो देयर यू कैन सी अब उसके एक्स वाई जो है एक्सिस मैंने चेंज कर दिया. सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी विंडो है विंडो का साइज चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री फंक्शन. यू कैन आल्सो चेंज द डिफॉल्ट लोकेशन, कि वो जो विंडो अपीयर हो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे प्रिंट हो. सो इन दिस वे यू कैन आल्सो चेंज द डिफॉल्ट लोकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे किया 400x 400, ठीक है. उसके बाद प्लस में यहाँ पे मैंने दे दिया, ये क्या थे, एक्स और वाई एक्सिस, इफ यू वांट टू चेंज द डिफॉल्ट लोकेशन, राइट. तो ये इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल था आपका किंटर के ऊपर, जहां पे हमने देखा कि हम किस तरह से किंटर के साथ एक डायलॉग बॉक्स को प्रिंट कर सकते हैं, राइट. सो इन अपकमिंग वीडियोस वी विल सी दैट हाउ वी कैन यूज द कंट्रोल ओवर द विंडो, हाउ वी कैन ऐड द कंट्रोल ओवर द डायलॉग बॉक्स. तो हम किस तरह से वो लेबल
या टेक्स्ट बॉक्स या रेडियो बटन या चेक बॉक्स या सिंपल बटन, इन सब का यूज करके that we how we can create an interactive GUI based application, right? So thank you student, thank you for watching my video.